Hello, friends. Welcome to 4-day web series on Indian polity. We are here on day 3 of our web series. Today, we are going to discuss about the fundamental rights. As you all know, since last 2 days, we are going continuously through the web series in which we are discussing about crucial topics of Indian polity. Today also, we will continue our series with the remaining topics. Yesterday we had discussed about fundamental rights. Today we will continue discussion about fundamental rights. We will discuss the remaining fundamental rights that we had not discussed yesterday. So let's begin our discussion. But firstly, let me introduce myself to you. My name is Avinash, and I have a YouTube channel, educator.avinash, from where I upload regular videos on the NCRTs or other books on which your preparation of UPSC or other examination depends heavily. So my concern is to provide a quality content to the users or to the aspirants so that they can clear the examination without having any constraint on of resources. So by this note, I want to start my webinar today. So let's get started with the webinar on Indian polity, that is day 3 of our web series on Indian polity. For this, I just start sharing my screen with you. Just hold down. So let's begin our presentation, that is on the day 3 of our web series. So as we all know, that we are going through the topics which includes what is constitution, how to remember parts of constitution, preamble, what are fundamental rights, articles pertaining to fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of state policy. As we had already done our study about fundamental rights, today we will continue with this and we will discuss the remaining part of fundamental rights. And we had already discussed about two fundamental rights, that is right to equality and right to freedom. Today we will continue our discussion with remaining parts. So without wasting any time, let's get started with fundamental rights that are remaining. First of all came right against exploitation. So what is right against exploitation? By the very name you can understand it's about exploitation. As you all know, हम पहले क्या थे, colonial power के अंडर थे. तो उस केस में भी हम पे बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ होती थी. और इवन वैसे भी इंडियन इंडियन सोसाइटी के केस में हायरार्की बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से हमेशा ऐसा होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी वे में. आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए. अगर हम मॉल में जाएंगे तो मॉल में अगर हमें कोई भी चीज़ बहुत महंगी भी दे रहा है, हमें पता है वो इतनी वर्थ नहीं रखती है, बट स्टिल वी आर गुड इनफ टू गिव दैट मनी टू हिम. हम कभी बार्गेन नहीं करेंगे. मगर जो वीकर सेक्शन में से बिलोंग करता है, दैट मीन्स जो रेडी वाला है या जो नॉर्मल एक हॉकर है, अगर आप उसकी बात करें, वो आपसे अगर आपको लग रहा है कि वो 1-2 रुपए भी एक्स्ट्रा ले रहा है तो आप उससे पक्का बार्गेन करेंगे. तो ये क्या है कि हम भी एक्सप्लॉइटेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं. ये मतलब बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक्सप्लॉइटेशन आज भी एग्जिस्ट करती है. मगर फाउंडिंग फादर्स जो थे वो हमेशा से एक्सप्लॉइटेशन के जो ये चीज़ है इसे टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रोविजंस रखना चाहते थे. इसी वजह से उन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि इसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया. इसके अंदर दो आर्टिकल्स आते हैं, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24. आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही प्रोबिशनरी है, मतलब दोनों ही प्रोहिबिट करते हैं एक्शंस को. एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है तो नेचुरली जो भी एक्शन है उसे प्रोहिबिट किया जाएगा कि कोई भी पर्सन जो है वो काम ना करे. तो यही चीज आएगी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर. अब इसमें आर्टिकल 23 क्या कहता है? वो करता है प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड फोर्स्ड लेबर. आपको पता है कि फोर्स लेबर का इशू इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. तो ये सारी की सारी चीजें ना एग्जिस्ट करें,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोर्स लेबर में अगर आप किसी से ऐसा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो पहले एक सीरियल भी आता था उड़ान नाम से, तो उसमें भी फोर्स लेबर के ऊपर सारी चीजें दिखाते थे। तो आप उस चीज से समझ सकते हैं। देखिए जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वही हमेशा सीरियल्स में या टीवी में या किसी मूवी में दिखाया जाता है, क्योंकि जो डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई होती है। तो वही चीज है, अगर वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तभी ऐसा सीरियल आया। सो इवन की राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे पास है, आप समझ सकते हैं, फिर भी हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों का। फोर्स लेबर आज भी एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि अगर कोई भी फोर्स लेबर कर रहा है या ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसकी चीज को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया जा सकता है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो पनिशेबल है। और ये जो राइट है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये जो एलियंस होते हैं, दैट मीन्स एलियंस का मतलब है जो पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स नहीं है, वो भी इस जो ये राइट है इसे यूज कर सकते हैं, ये उनके लिए भी अवेलेबल है। अब ये जो आर्टिकल 23 है इसका क्लॉज 2 है, वो एक तरह से एक्सेप्शन देता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था एक कि क्या होता है, हमेशा कोई भी आर्टिकल होता है उसमें सबसे पहले तो उसकी जो पावर है वो दिखा दी जाती है कि आपको ये करना है, फिर उसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो दिखाई जाती हैं। तो सेम एज इट इज आर्टिकल 23 के केस में भी है। इसमें आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में क्या है, एक्सेप्शन दिया गया है कि ऑल्दो ये जो फोर्स लेबर वगैरह ये सब चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मगर अगर स्टेट को लगता है कि कोई भी ऐसी कुछ पब्लिक पर्पस है, ग्रेटर पब्लिक पर्पस है, उसके लिए ऐसे किसी पर्सन को फोर्स किया जा सकता है कि हाँ आप ये काम करना ही आपको करना है, तो वो स्टेट कर सकती है। जैसे कि वॉर के केस में अगर उसको लगता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, अगर उसे लगता है कि वॉर के केस में हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो वो ऐसा कर सकती है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को बोल सकती है कि आपको अपनी सर्विस कंट्री के नाम पे देनी ही देनी है। ऑल्दो ये फोर्स्ड लेबर हो गई ना, मगर स्टिल आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो लार्जर बेनिफिट के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है। और एक चीज यहाँ पे मेंशन करने की है कि जब स्टेट ऐसा करेगी तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ ये 4-5 बेसिस पे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ये चीजें यहाँ पे मेंशन है कि ऑल्दो आप कर सकते हैं कि आप फोर्स लेबर लगा दें किसी लार्जर पर्पस के लिए, मगर उस केस में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये हो गया आर्टिकल 23। फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि जो 14 ईयर्स से कम एज के हैं वो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस होती हैं। आप सोचेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की चीज यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि जो 14 ईयर्स से पहले काम कर रहा है वो भी तो एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है। जो उसकी एज एक तरह से उसे एक्सपोजर देने की थी कि इस टाइम पे आप जाके देखें कि एजुकेशन क्या है। ऑल्दो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एजुकेशन को ड्रॉप करके कोई अपना प्रोफेशन ले सकते हैं, मगर बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलनी जरूरी है। तो वो चीज भी अगर किसी पर्सन को या किसी चिल्ड्रन को नहीं मिल रही है, सो वो क्या है, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि जिस टाइम में उसे पढ़ना है उस टाइम में वो जाके काम कर रहा है, और वो भी इतनी डेंजरस जगहों पे। तो ये इस वजह से इसे प्रोहिबिट किया जाता है, और ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। होप आपको ये दोनों आर्टिकल्स क्लियर हो गए। उसके बाद आता है अगला जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब सेकुलर कंट्री है तो नेचुरली किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कुछ ऐसा नहीं होगा कि डोमिनेशन रहेगा। हमारे नेशन का कोई रिलीजन नहीं है, हम एक सेकुलर कंट्री है। इसी वजह से जितने भी रिलीजन हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। अगर किसी एक रिलीजन को थ्रेट लगेगा तो वो हमारी जो एक इंडिया की आइडेंटिटी है उसको ही थ्रेटन कर देगा। आपको पता है इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर सपोज यूनिटी ही नहीं रहेगी डाइवर्सिटी में, लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, तो वेरी पर्पस ऑफ इंडिया वही डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
इस वजह से जो रिलीजन है उन्हें भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हर किसी को, हर पर्सन को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है और उसे फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। इसमें आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 25 से लेके 28 के तक। अब इसमें सबसे पहले आर्टिकल्स डिस्कस करने से पहले कुछ मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलीजन है या कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं उसको आप किसी ना किसी ऐसे में, क्योंकि आपको पता है एक जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो ऐसे का होता है, तो उस जगह पे उस ऐसे में भी आप ये जो लाइंस है वो कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रैंडम लाइंस नहीं है, ये जो जजमेंट्स है उसके रिलेटेड लाइंस है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी जजमेंट दिया है उसके बेसिस पे ये सारी लाइंस लिखी गई हैं। सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट वी मे से दैट रिलीजन इज मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप रिलीजन को डिफाइन करेंगे तो रिलीजन का मतलब क्या है, किसी लोगों का फेथ और बिलीफ। देखिए फेथ ही तो है, आप फेथ कर रहे हैं कि कोई इनविजिबल पावर है जो आपको गवर्न कर रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो बोलेगा ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, ये माइंड में जो ये चेंजेस हैं, मतलब एक पर्सन की कुछ थिंकिंग है दूसरे पर्सन की कुछ थिंकिंग है, क्यों है, क्योंकि हर किसी का अपना फेथ है और बिलीविंग सिस्टम है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब दूसरी बात क्या आती है जो इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इज मैटर ऑफ फेथ बट बिलीफ इन गॉड इज नॉट असेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट रिलीजन। इसका मतलब ये है कि ठीक है, ऑल्दो रिलीजन का मतलब फेथ है, एक ही जो गॉड है उसके ऊपर फेथ हो या इनविजिबल पावर है उसके ऊपर आप फेथ करें, मगर अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, आप एथीस्ट हैं, इवन देन आप रिलीजन की एक आइडेंटिटी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए भी है जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एथीस्ट है, ऐसा नहीं है आप उसे बोल देंगे कि भाई ये तो रिलीजन की बात है, तुम तो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हो तो तुम्हें ये राइट कैसे मिलेगा, बिल्कुल नहीं। उनके लिए भी ये राइट वैलिड है, ये उनके भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि अगर आप भगवान में विश्वास करें चाहे ना करें, फिर भी आप एक रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फेथ और बिलीफ है। उनका फेथ है एक ही गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एक अलग कम्युनिटी बना के एक अलग रिलीजन बना रहे हैं जिसमें कि गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है। आप इस तरह से ले सकते हैं। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ईच रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट इट्स एसेंशियल पार्ट बट द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन दैम। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या कोई भी रिलीजन है वो कल को बोल दे कि ये हमारा राइट है और आपको इस रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, आप हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट हमेशा कॉम्पिटेंट है, वो अगर चाहे तो वो किसी भी चीज, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का काम कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर सकती है तो क्या वो रिलीजन की डेफिनेशन या उसकी जो भी निटी ग्रिटीज है क्या उसे नहीं कर सकती। यही यहाँ लिखा है कि कोर्ट हमेशा कॉम्पिटेंट है, वो अगर चाहे तो रिलीजियस जो भी मैटर है उन सब में एग्जामिनेशन कर सकती है। मतलब अगर सपोज आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कोई भी आर्टिकल है उसमें कोई भी चीजें हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी चैलेंज करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हैं। फिर लास्ट में ये है कि फिलोसफी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ये आप सबको अंडरस्टूड होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उसमें फिलोसफी बताई जाती है, डिफरेंट फिलोसफीज जो है, अगर आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसकी और आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये फिलोसफी वाला पार्ट आता है, तो आपको पता होगा फिलोसफी अलग चीज होती है, रिलीजन अलग चीज होती है, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आती है बात आर्टिकल्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या राइट प्रोवाइड कर रहा है आपको, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कि एक पर्सन को ये फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से, अपनी कंसाइंस के हिसाब से फ्रीली जो भी जिस भी रिलीजन को वो बिलीव करता है उसे प्रोफेस कर सके, उसे प्रैक्टिस कर सके और इससे इवन उसे प्रोपेगेट भी कर सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। बट इसके साथ कुछ कंडीशंस आती हैं जो कि क्लॉज 1 में लिखा है कि वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी
और हेल्थ, इन तीनों चीजों को बिल्कुल भी थ्रेटन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं हर रिलीजन के अंदर, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वो एक्सट्रीम फैक्टर्स किसी भी हाल में हम लोग एक रैशनल माइंड से अगर सोचें तो हम उन्हें नहीं बता सकते कि ये सही है, उन्हें हमेशा हम गलत ही ठहराएंगे। ये रैशनैलिटी बोलती है। मतलब उनका कहना ये है कि ठीक है, आप फ्रीली प्रोफेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोपिगेट कीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को हार्म करें। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हिंदू रिलीजन में होता है कि फास्टिंग अच्छा माना जाता है, जैनिज्म में भी फास्टिंग अच्छा माना जाता है, मगर वो एक लिमिट में होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ को ही थ्रेट कर दे। ये चीज है, ये पर्पज है इस क्लॉज का। फिर क्लॉज 2 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। मतलब इसमें स्टेट को ऑथराइज किया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी which may be associated with religious practice। although वो religious practice से associated है, मगर अगर state चाहे तो उसे किसी भी तरीके से रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। आप सपोज कीजिए, सिखिज्म में लीजिए, अगर नगर कीर्तन जाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में से, और हाँ, जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में इस समय में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे इस समय ट्रैफिक होता है, तो वहां पे वो डिस्टरबेंस दे सकता है। तो ये क्या हो गया? रेगुलेशन, जो कि स्टेट कर सकती है। ये रीजनेबल होता है और ये जरूरी भी है। अगर सपोज स्टेट नहीं कर पाएगी, तो आपको याद होगा जो मुगल्स का टाइम था उसमें क्या रहता था, जो भी रिलीजियस, ये जो क्लर्की वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपनी डोमिनेशन रखते थे, इवन किंग को उसके नीचे माना जाता था, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो कंट्री है वो सेकुलर नहीं रहेगी, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है हमारी इंडिया की आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं। ये बात होगी ए क्लॉज की, ए सब क्लॉज की। फिर बी में क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। अब अगर आप इस सब क्लॉज को देखेंगे तो आप क्या समझेंगे कि ये एक तरह से अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी ना, उससे रिलेटेड है। वो कैसे है? क्योंकि आपको पता है पहले क्या होता था कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स होते थे, उन्हें अलाउड नहीं था कि वो जा सके किसी कुछ पर्टिकुलर जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बोल सकते हैं आप मंदिर वगैरह, तो उन सबको अलाउड नहीं था। सॉरी। तो वो सब चीजें, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे नलीफाई करता है। वो क्या बोलता है कि जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबके लिए ओपन होने चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा प्योर और इम्प्योर का कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मेंशन करने की है कि यहाँ पे जो हिंदू की वर्ड यूज किया गया है, वो हिंदू में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो हिंदूज है वो तो है ही है, इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट जो रिलीजन के लोग हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जरूर याद रखना है। फिर आती है बात आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर की जाती है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव राइट्स। देखिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तो जरूर रहेगा। आप याद रखिएगा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हर राइट के अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स है जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, और वो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में। और इसमें क्या बोला जाता है कि जो ये रिलीजियस अफेयर्स की बात है उसमें जो 3 ग्राउंड्स रहेंगे मोस्टली, वो क्या रहेंगे? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा थ्रेटन हो सकते हैं अगर आप इसको ज्यादा फ्रीडम देंगे। तो ये क्या बोला जाता है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शेल हैव राइट्स, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस
मैनेज इट्स ओन अफेयर, मतलब हर किसी के पास, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास एक राइट है जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से एस्टेब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन्हें। उससे क्या होगा, कि उन्हें एक फ्रीडम मिलती है, एक स्पेस मिलता है जिसके विद इन वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। उन्हें वही फ्रीडम सब ये जो सब क्लॉज बी है वो दे रहा है, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। फिर सी क्या है, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सपोज कीजिए कोई गुरुद्वारा या कोई मंदिर बना है, ऐसा नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आप ओन नहीं कर सकते, वो आपको लीज पे लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज किसी न किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशन है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम पे हो सकती है। फिर डी क्या है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपको लॉ के हिसाब से जरूर चलना है। देखिए वो तो रीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी रिलीजन को, चाहे कोई भी रिलीजन है, उसे फुली फ्रीडम दे देंगे तो वो अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं रहेगा हमारे कंट्री के लिए। तो ये हो गया आर्टिकल 26। फिर आती है आर्टिकल 27 की बात, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आपको पता हो तो जो रिलीजियस लोग होते हैं, मतलब रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस हैं, उनके लिए जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, तो उन पे टैक्स नहीं उन्हें देना पड़ता। इवन अगर वो सपोज कीजिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कोई भी पर्सन फॉरेन भी जा रहा है किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उसे कोई ऐसा नहीं है कि उसे टैक्स देना पड़ेगा, उसको बहुत सारी जो रिजम्पशन है वो मिलती हैं। Thus, even with authority of law, no tax may be levied for promoting or maintaining any particular religion. जैसे मैंने बोला, अगर प्रोपेगेशन के लिए आप जा रहे हैं तो उस केस में आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे एक चीज वर्थ है मेंशन करने की, कि यहाँ पे टैक्स प्रोहिबिटेड है, फीस नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो फीस ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई जगह प्रोवाइड की है, उस जगह पे जाके आप अपना कोई भी प्रोग्राम है वो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे फीस ले सकती है, क्योंकि वो टैक्स नहीं, वो फीस है। और हर सर्विस की फीस हो सकती है जो कि आपको देनी पड़ेगी। ये चीज यहाँ पे आती है। फिर आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या रहता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो बनाए जा सकते हैं, मतलब कोई भी रिलीजियस जो डिनोमिनेशन है वो कोई अपनी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती है, मगर वहां पे किस तरह से वर्क होगा, मतलब अगर वहां पे कोई प्रेयर हो रही है तो वो क्या आप कंपेल्ड हो, आपको वो प्रेयर करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, वो चीजें इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो फुली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया हो, ठीक है, उस केस में तो अलग चीज रहेगी। फिर दूसरा हो सकता है रिसीविंग एड एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टेट, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एड वगैरह दी जाती है, वो हो गया। थर्ड कौन सा है, दोज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट सच रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड। जो थर्ड है उसमें जो है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड की जाएगी, सॉरी, क्योंकि वो ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। तो जो फर्स्ट है दैट मीन्स होली मेंटेन बाय स्टेट, तो स्टेट क्या है, सेकुलर है, तो वहां पे आपको जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं करनी है। मगर जो सेकंड है वहां पे एड दी जा रही है, तो वहां पे हो सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो, मगर आपकी मर्जी, आप चाहें तो करें, नहीं करनी है तो मत करें। मगर जो लास्ट है जहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, तो वहां पे आपको फोर्स किया जा सकता है, पहले दो में आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये हो गया आर्टिकल 28। ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। अब बात आती है इट इन फर्स्ट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वो हमने देख लिया। अब बात आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। सबसे पहले क्या है कि अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया के केस में, तो इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटीज रहती है, हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो उस केस में हर किसी को इकट्ठा रखने के लिए उनकी सब जैसे माइनॉरिटीज हैं उसके ऊपर मेजोरिटी जो भी होती है वो रूल करने की कोशिश करेगी, अपनी जो इम्पोजिशंस हैं वो उन पे डालेंगी, जो अपनी सोच है उन पे थोप सकती है। तो उनको कुछ पर्टिकुलर प्रोटेक्शंस है जो जरूर प्रोवाइड होनी चाहिए, वही आर्टिकल 29 में प्रोवाइड की जाती है।
आर्टिकल 29 में इस क्लॉज 1 क्या बोलता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। कि जो भी इंडिया के केस में जो भी माइनॉरिटी या कोई भी सिटीजन रह रहा है, उसकी जो भी डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर जो भी है, उसे कंजर्व करने का उसको पूरा राइट है। मतलब वो उसको कंजर्व करके रख सकता है। क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds on ground only on religion, race, caste, language or any of them। कि अगर आप किसी की भी बात करें, कोई भी सिटीजन ऐसा ना हो, माइनॉरिटी में से ही हो सकता है नॉर्मली, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिसे कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से डिनाई किया गया हो, जो कि स्टेट के अंदर आता हो, मतलब चाहे वो स्टेट के द्वारा ऑन्ड हो, चाहे स्टेट फंडिंग उसे मिलती हो, उनमें आप किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते हो एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ये चीज है, आपको पता होगा। यहाँ पे सिर्फ दो क्यों मेंशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो माइनॉरिटीज के द्वारा जैसे एस्टेब्लिश्ड है, उसमें क्या रहेगा, अगर वो चाहें तो वो रिजर्वेशन या वो एडमिशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, उनके पास राइट है, मगर अदरवाइज नहीं ऐसा हो सकता, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने पहले बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकती है और अपने हिसाब से उसे एडमिनिस्टर कर सकती है। तो इसमें क्लॉज 1 क्या बोलता है? ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, शेल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कि उनके पास राइट है वो अपने हिसाब से, उनके पास राइट है वो अपने हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसे स्टैब्लिश कर सकती है और अपने हिसाब से उसे रन कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है। जो क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है? इन ग्रांटिंग एड स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड दैट इट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। मतलब सपोज कीजिए आपने राइट दे दिया किसी को कि हाँ आप माइनॉरिटी हो, तो अपने हिसाब से अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, और फिर बाद में बोला जाए कि क्योंकि आप माइनॉरिटी हो या आप हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल को जो गवर्नमेंट है वो नेगोशिएशन करने के लिए बोले कि ठीक है आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारे इतने लोग अपने इधर एडमिनिस्टर कर लीजिए, हमारी ये रिजर्वेशन पॉलिसी अपने इंस्टीट्यूशन में डाल दीजिए और उससे हम लोग आपको क्या बेनिफिट देंगे, हम आपको ग्रांट दे देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। तो यही क्लॉज 2 बोलता है कि ग्रांटिंग एड, जब एड देनी है तब जो स्टेट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बराबर देगी, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इस वजह से उन्हें ग्रांट कम दी जाए, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। यही यहाँ पे लिखा है। फिर लास्ट में क्या आता है? एजुकेशनल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर आइडेंटिफाइड एट स्टेट लेवल। ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो डिफाइन की जाती हैं वो डिफाइन की जाती है स्टेट लेवल पे, क्योंकि हर स्टेट में कोई ना कोई अपनी माइनॉरिटीज होती हैं, तो वो सारी चीजें स्टेट ही बताएगी कि कौन से स्टेट में कौन माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करता है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट है ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। इस राइट के बिना जो हमारा पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। इसमें आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है, पर जो आर्टिकल 32 है आप उसको ही बोल सकते हैं रेमेडीज की बात, क्योंकि बाकी चीजें अलग हैं, वो आपको बाद में बताऊंगी कि वो एक तरह से एक्सेप्शंस के केसेस में है। जो आर्टिकल 32 है वो मेन जो है वो है एक्चुअल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें क्या बोला जाता है? इवन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने भी बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये टीथ है, अगर ये टीथ ना हो तो ये जो लॉइन है फंडामेंटल राइट के नाम का, ये टीथलेस हो जाएगा और उसके कारण ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आर्टिकल 32 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आर्टिकल 32 क्या करता है? वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो अगर उसे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पर्सन के वायलेट हो रहे हैं, मतलब उसे वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। रिट मतलब वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ अपने आप से ही जैसे बोल लीजिए स्टेप्स ले सकता है। उसके लिए आपको कुछ भी पेटिशन फाइल नहीं करनी है, वो खुद ब खुद कोई भी केस उठा सकता है और किसी को भी चैलेंज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है वो एक बार हम क्लॉज बाय क्लॉज देखते हैं।
आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। क्लॉज 1 क्या बोलता है कि टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको लगता है फंडामेंटल राइट की एनफोर्सिबिलिटी में कुछ इश्यू आ रहा है, मतलब कोई आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, तो आपको हायरार्की में नहीं चलना है। मतलब जैसे होता है ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट वगैरह में जाएंगे, वो चीजें नहीं करनी है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये क्लॉज 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारा टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता। क्लॉज 2 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट। इसमें क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। जैसे सपोज कोई डिटेन्ड है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बोल सकता है कि भाई वो जो भी पर्सन है उसे हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सके। वो कह सकता है अपनी जुडिशरी को कि भाई आपने ये काम अपनी जुरिस्डिक्शन से अलग किया, अपनी जुरिस्डिक्शन से अलग आपने ये ऑर्डर कैसे पास किया। तो ये सारी चीजें वो आप हम आगे भी देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में, पर आपको इतना बता दें कि रिट जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो क्लॉज 2 आर्टिकल 32 का प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को। क्लॉज 3 क्या बोलता है, पार्लियामेंट्स पावर टू अलाउ एनी अदर कोर्ट टू एंजॉय पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है और मोस्टली बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट को पावर देता है, ऑल्दो वैसे तो रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, मगर अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी और कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो खुद भी रिट जो है वो जारी कर सके। ऑल्दो नॉर्मली अगर आप बात करेंगे तो बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होंगी जो ये पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वही रिट जारी कर सकता है, बट वो गलत है। फिर क्लॉज 4 में क्या आता है, राइट्स गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडिंग एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोवाइडेड होगा सिर्फ तभी ये राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं जो इसके अंदर है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं सस्पेंड किए जा सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 32। अब रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुई थी 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में। उसमें क्या रहता था कि जो किंग था वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकता था। अब जो आर्टिकल 32 है वही मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 32 को टीथ बोला जाता है पार्ट 3 का, और इसमें क्या है जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गारंटियर और प्रोटेक्टर बोला जा सकता है फंडामेंटल राइट का। क्यों, क्योंकि गारंटी कौन कर रहा है कि हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और प्रोटेक्ट कौन कर रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर सपोज कोई भी थ्रेट हो रहा है तो हम किसके पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को गारंटियर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है अंडर आर्टिकल 32। अब बात आती है रिट की। तो 5 रिट्स हैं जो यहाँ जो नॉर्मली आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस बेयर एक्ट वगैरह में दिखेंगी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 रिट्स ही जारी की जा सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो और रिट्स भी ला सकता है अगर वो चाहे, ये भी जरूर याद रखिएगा। ये भी एक ट्रिकी पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 रिट्स ही हैं, ज्यादा रिट्स भी जारी की जा सकती है। अब सबसे पहले जो रिट है वो कौन सी है, हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या है कि जो कोर्ट है वो डिमांड करता है कि जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है उसे हमारे सामने पेश किया जाए। और देखिए डिटेंशन हमेशा से काफी ज्यादा ना आर्ग्यूमेंटल रहता है कि डिटेन पर्सन, गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है इसलिए उसने पर्सन को डिटेन किया है। अब वो सही है गलत है ये अलग चीज है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखता है। जब वो बोलता है कि जो डिटेन किया है पर्सन वो मेरे सामने लाओ, मैं अपने आप उससे देखूंगा कि वो क्या बोलता है, और लोकस स्टैंडाई का जो मेन फंडा है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है, वो सही नहीं है, तो उस पर्सन की लिबर्टी रिस्टोर की जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। और ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये स्टेट और इंडिविजुअल सबके लिए एग्जिस्ट करती है। देखिए आप अगर कोई भी रिट पढ़ेंगे उसमें आपको ये देखना है वो रिट क्या है, वो किसके द्वारा जारी की गई और किसके खिलाफ जारी की, मतलब वो किसके लिए रिट जारी हो सकती है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। ये हमने हेबियस कॉर्पस देखा। फिर आता है मैंडेमस। आप इसको अगर याद करना चाहें तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं मैडम आप क्या कर रहे हो, तो उस हिसाब से है कि जो हायर जुडिशरी है वो ये रिट जारी करती है, और किसको जारी करती है, एग्जीक्यूटिव्स को, कि उससे बोले कंपेल करे कि भाई ये काम कीजिए।
मतलब सपोज कीजिए अगर जो हायर जुडिशरी है वो चाहती है कि हाँ ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ये काम करे, तो उसके लिए भी वो मैंडेमस जारी करेगी। अगर वो चाहती है कि ये ना करे तो भी वो मैंडेमस जारी करेगी। ये रिट इसके लिए होती है, कंपेलिंग इट टू डू और नॉट डू समथिंग विच इज इन नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो नेचुरली किसके अगेंस्ट में हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटीज की। और यहाँ पे एक्सेप्शंस किसको मिला है, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और प्राइवेट इंडिविजुअल को, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है नेचुरल पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आया। तो ये चीज हो गई, प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनको एक्सेप्शन मिलता है। थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, कोर्ट और क्वासी कोर्ट इज बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन मैनर बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, कि आप अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जाएंगे, आप उसके बाहर काम नहीं करेंगे। ये प्रोहिबिशन के बात आती है। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गई। फोर्थ है सेंचुरारी। इसमें क्या होता है, ये ऑल दो प्रोहिबिशन के जैसा ही है, मगर इसमें क्या है, ये अल्ट्रा वायर्स प्रोसीडिंग की के अगेंस्ट में नहीं बल्कि अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर के अगेंस्ट में होती है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है, अब जैसे कोर्ट है, कोर्ट या क्वासी कोर्ट के अगेंस्ट में जो प्रोहिबिशन जारी होता है उसमें क्या रहता है कि जो कोर्ट है वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर प्रोसीडिंग कर रहा है, मतलब उसके बाहर का उसने केस लिया। आपको पता है हाई कोर्ट हुआ या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ तो उसकी कुछ जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर का ही वो केस हैंडल कर सकते हैं, उसकी कुछ पावर्स है, उसके अंडर के केसेस वो हैंडल कर सकते हैं। अगर वो उससे बाहर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स प्रोसीडिंग हो गया। और सेंचुरारी में क्या है कि उन्होंने बाहर जाके इवन ऑर्डर भी दे दिया तो वो सेंचुरारी में आ गया। और लास्ट में क्या है, क्यू वारंटो। इसमें क्या रहता है, इशूड व्हेन इन एलिजिबल पर्सन जो है उसने कोई पब्लिक ऑफिस ऑक्युपाई कर लिया है विदाउट फुलफिलिंग इट्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ये भी अगर ये पब्लिक ऑफिस उसने ऑक्युपाई किया है तो नेचुरली किसके अगेंस्ट में होगी, पब्लिक अथॉरिटी के। तो ये 5 रिट्स थी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। पर ये जरूर याद रखिएगा कि सिर्फ यही रिट्स नहीं है, और भी रिट्स है। अगर मतलब और भी रिट्स अगर कोर्ट चाहे तो वो जारी कर सकती है। तो ये चीज होगी रिट के बारे में। आर्टिकल 33 आता है। अब मैंने बोला ना कि जो मेन है वो आर्टिकल 32 रहेगा। 33 क्या है, मैंने आपको पहले जब ट्रेड यूनियन की बात की थी तब भी मैंने बोला था कि जो आर्म फोर्सेस वगैरह है उसमें उसमें यूनियंस नहीं बन सकती है। वो कुछ एक्सेप्शंस है जो कि इन्हें मिला है, मतलब हमारी गवर्नमेंट उन्हें देती है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर वहां पे यूनियंस बन गए और अगर वहां पे पॉलिटिक्स हो गई तो वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। तो आर्टिकल 33 के अंदर क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसमें पावर मिलता है पार्लियामेंट को कि वो अगर चाहे तो जो कुछ राइट्स जो प्रोवाइडेड किए गए हैं पार्ट 3 में उन्हें चेंज कर सकती हैं। उसमें क्या रहेगा, जैसे मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, जो पब्लिक मतलब जो फोर्सेस एंगेज्ड हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में उनके लिए कुछ राइट्स नहीं रहते हैं, जो ब्यूरो में है उनके लिए कुछ राइट्स नहीं रहते, जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप किया गया है फोर्सेस या ब्यूरो के लिए, उन्हें कुछ पर्टिकुलर राइट्स है वो नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये किसके लिए है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो वही बात आती है, कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर अगर स्टेट चाहे तो वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के केसेस में भी लगा सकती है, वही यहाँ पे हो रहा है। फिर बात आती है आर्टिकल 34 की। वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। कि अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है तो वहां पे भी कैसे जो कुछ राइट्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने एक पूरा जो हमारी आर्टिकल्स थे फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक बार हम लास्ट में समराइज करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया है पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हम जो बोल सकते हैं हमने डिस्कस की है। फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप्स के थे। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम हमने कल डिस्कस किया। राइट टू इक्वालिटी में क्या था, आर्टिकल 14 जिसमें क्या बोला गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
आर्टिकल 14 में था, जिसमें हमने देखा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वगैरह वाली सारी बातें। फिर आर्टिकल 15 जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 में हमने देखा कि कैसे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उस केस में इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। 17 में कैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। 18 में टाइटल्स को अबॉलिश किया गया। ये सब चीजें किसके अंडर थी? राइट टू इक्वालिटी के। फिर राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 जिसमें क्या था? प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कॉन्विक्शन, जिसमें हमने बताया था ना डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 21 जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात थी। 21A राइट टू इक्वल एजुकेशन। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो हमने देखा था प्यूनिटिव जो डिटेंशन थी और प्रिवेंटिव डिटेंशन की जिसमें हमने बात की थी। फिर बात आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आज हमने देखा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, जो कि अंडर 14 एज है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने देखा कि आर्टिकल 25 जो था फ्रीली प्रोफेस करने का राइट देता है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 फ्रीडम ऑफ टैक्सेस। और 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो हमने देखा 3 टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस है वो हो सकते हैं। तो कहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो कंपेल किया जा सकता है कि हाँ ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें कि आर्टिकल 29 में क्या था कि जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। 30 में राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमने सारी चीजें देख ली, जिसमें हमने फंडिंग की बात की कि कैसे जो स्टेट है वो पार्शियलिटी नहीं कर सकती ग्रांट देने के टाइम पे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, जिसके अंडर हमें इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जिसमें हमने 5 रिट्स है वो डिस्कस की, मगर वो सिर्फ और सिर्फ वही 5 रिट्स नहीं हो सकती, और भी रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट है बाय टाइम जारी कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल 32। 33 कि कैसे जो पार्लियामेंट है वो राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। 34 मार्शल लॉ है, वहां पे राइट्स कैसे रहेंगे। और 35 ऑल्दो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो अगर आप बेरेक्ट में देखेंगे तो इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल रहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो इसके साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा सेक्शन है वो कवर हो गया है। अब आपका कोई डाउट है तो वो हम ले सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? नो। Okay. Okay, fine. If you don't have any doubt, then we wrap up our discussion. और इसके साथ हम कल मिलेंगे, कल अगेन 6 o'clock, जिसमें कि हम लोग जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है, दैट मीन्स जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी का, वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, ओके फाइन, देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।